So I was teaching you matrices or linear algebra. In that, a very important topic we started, that is eigenvalues and eigenvectors. Remember, nearly 35-40 problems I solved, but still more I'm going to solve. But before solving those problems, uh, few properties I told you, and few given in the notes also. But today again, once again in detail, I will in detail I will tell you all the properties once again with examples. Remember, if you are perfect in properties, then only by shortcut methods you can solve the problem in GATE exams. Suppose a problem is given to you, as I told you, for every problem 2.7 minutes are there. You give at least 1 minute for understanding the problems. Many times what happens, I will tell you, if you understand the problem very well, no, so easily you can solve by knowing some property. Of course, when problem is given to you, means definitely can be solved in 2.7 minutes. Then only such problems are given to you, but such problems are very small. Of course, if you don't know any, if you are not getting any property or any smart method or any shortcut method, you can go in detail. That is in the end. But in the starting, you have to find some smart methods or shortcut methods. To do this one, you should be very perfect in properties. So many properties are there. Today I will take all the properties in detail, and after that we'll go for problems again. Okay. Now you see here. So one by one, I will start the properties. So please go, try to understand in detail this one. What is the, first of all, two topics are there. One is eigenvalue, another is eigenvectors. So we shall now study about properties of eigenvalues. Eigenvalues. What the first property says that here, the eigenvalues of a diagonal matrix, the eigenvalues of a diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, upper or lower triangular matrix are just its diagonal elements. Are just its diagonal elements. एक बार मैं आपको समझाता हूँ. देखो, फिर कोई भी मैट्रिक्स अगर से डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर से ये प्रॉपर्टीज है, इस टाइप का मैट्रिक्स कोई भी है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते वही ईजन वैल्यूज रहते.
वही ईजन वैल्यूज रहते हैं। प्रॉपर्टीज अच्छी तरह याद रखो। द ईजन वैल्यूज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब है, देखिए आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया, कोई भी मैट्रिक्स दिया और एग्जाम में पूछा कि फाइंड इट्स ईजन वैल्यूज, तो इमीडिएटली डोंट गो फॉर 2 माइनस लैम्बडा, 8 माइनस माइनस 9 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 डिटरमिनेट करके सॉल्व करके लैम्बडा का वैल्यू मत निकालो। ऑफ कोर्स आप निकाल सकते, वो सही भी रहता, लेकिन ये करने तक, so you will, I mean, for doing such things you may lose your 5-6 minutes. Time is also very important in GATE exam. You may be knowing all the answers, but time management is also very important. अगर से आप मैक्सिमम प्रॉब्लम वो भी सही करे विथ इन द स्टिपुलेटेड टाइम, देन ओनली यू आर द विनर। यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम करके यूनिवर्सिटी की वजह से आपको मार्क्स स्कोर नहीं करना है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उससे भी आपको आगे बढ़ना है, तो आपको स्मार्ट मेथड्स ढूंढना है। इसके लिए प्रॉपर्टीज आपको पता होना ही पड़ता है। तो याद रखो, अगर से इस टाइप का कोई प्रॉब्लम दिया एंड हियर ही इज आस्किंग यू फाइंड इट्स ईजन वैल्यूज, तो उस वक्त आप देखो ये किसी प्रॉपर्टी में बैठता क्या। अब देखिए यहाँ पर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे 0 0 0 0, सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही उसके ईजन वैल्यूज रहते। इसके डायगोनल एलिमेंट्स 2, 8 और -9 है, इसलिए इस मैट्रिक्स के ईजन वैल्यूज 2, 8, -9। देखिए अब कैलकुलेशन करने में 5 मिनट चले जाते हैं आपको, बट जस्ट बाय सीइंग इट you can write within fraction of seconds, you can do this problem. So this is the first property. Once again I will tell you, the eigen values of a diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, upper or lower triangular matrix are just its diagonal elements. Please once again you go through what is diagonal element, what is diagonal matrix, what is scalar matrix. This I have given you. Once again you read. Now coming to the second one, यहाँ पर देखिए 1 0 0 -4 8 3 0 -9 3, यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर 0 है। दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही उसके ईजन वैल्यूज बनेंगे। तो यहां पर इस मैट्रिक्स के 183 ईजन वैल्यूज बनेंगे, 183 ईजन वैल्यूज बनेंगे। यहां पर आइए आप 2 4 0 except principal diagonals all elements are 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स में उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो ईजन वैल्यूज है। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब 0 है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स में भी जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो उसके ईजन वैल्यूज है, बच्चे से सारे 0 रहे जब ये। अब ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स में क्या है 1 1 1 रहते, बाकी के सभी जीरोस रहते, तो यूनिट मैट्रिक्स के ईजन वैल्यूज क्या बनेंगे, जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 1। तो मालूम हुआ आपको, तो डायगोनल अगर सपोज अ मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, इफ इट इज डायगोनल, स्केलर, यूनिट, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, तो डेफिनेटली उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वही उसके ईजन वैल्यू बनेंगे, वही उसके ईजन वैल्यू बनेंगे। क्लियर द थिंग्स? नाउ नेक्स्ट वन, if lambda 1 lambda 2 up to lambda n are the eigen values of a matrix of order n, then this is आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो, दैट इज कॉल्ड ट्रेस, एंड ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ द ईजन वैल्यूज। इसके ऊपर हम बहुत सारे प्रॉब्लम करें, यू आर फैमिलियर विद दिस वन, यू लीव इट। एंड सेकंड प्रॉपर्टीज इज ईजन वैल्यूज को अगर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। तो आई थिंक up to now the things are very clear to you। क्या क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ईजन वैल्यूज क्या रहेंगे, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो रहेंगे वही रहेंगे। दूसरा ट्रेस, ट्रेस मतलब सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स is equal to sum of the eigen values of the matrix, sum of the eigen values of the matrix। और दूसरा product of the eigen values is equal to determinant of the matrix, product of the eigen values is equal to the product of the eigen value is equal to determinant of the matrix। ये भी आपको पता है बहुत कम। ओके, आई होप टिल नाउ द प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लियर। कुछ डाउट्स है तो चैट बॉक्स में डालते जाओ। नेक्स्ट आओ, यहाँ पर कुछ नोट याद रखो आप,
Zero is an eigenvalue of a matrix if and if only if A is singular. अगर से मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका कोई भी एक इजन वैल्यू 0 100% रहेगा. सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जीरो. डिटरमिनेंट अगर से जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ द इजन वैल्यू जीरो है. प्रोडक्ट ऑफ द इजन वैल्यू जीरो उसी वक्त बनता इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इजन वैल्यूज इज जीरो. तो ये भी याद रखो आप, कभी कभी आपको इसको देख के करना है. जीरो अगर से इजन वैल्यू का मैट्रिक्स है, समझिए एक भी वैल्यू अगर से जीरो है तो मैट्रिक्स कैसा है? सिंगुलर. सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसके डिटरमिनेंट जीरो रहता है. इफ ऑल द इजन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. देखिए यहाँ पर 2 4 -4 है तो ट्रेस बताया, एलिमेंट बताया, आपको पता है. अब तो ये हो गया आपका पहले प्रॉपर्टीज. वेरी क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए. प्लीज डाउट है तो पूछो. प्रॉपर्टीज आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ. प्रॉब्लम्स अभी बहुत सारे हैं, मैं करते जाऊंगा. एंड वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, इफ यू मे बी फीलिंग दैट सर इज गोइंग वेरी स्लो, टेकिंग syllabus in very deeply, but it is need of the hour because you are having maximum time as I told you. So please go through the mathematics and aptitude English in detail for the whole year. Still 1 year time is there. मुझे जितना डिटेल जानना है, जितना डीप जानना है, जितना आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम कराना है, मैं उतने सारे कराऊंगा आपको. And today afternoon, please remember at 2:15 I am starting aptitude. And again aptitude is very very important part. उसके सारे शॉर्टकट मेथड्स इतने डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी. So please attend today's afternoon class aptitude. अगर से आप if you do mathematics, aptitude and English perfectly, 100% you will get through the गेट. एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे सिर्फ इतना परफेक्ट करने पे, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज में आप कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे. लेकिन यू वोंट गेट द टाइम व्हेन वंस यू स्टार्ट योर टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपरेशन इन थर्ड ईयर और बी फाइनल ईयर. So that is the best time for you. Once again I will reminding, and I am the best teacher too. I will complete the whole syllabus of aptitude and mathematics in detail, each and everything on eigenvalue and eigenvector only. I will solve near about 80 problems by taking all the gate question paper problems from civil, electrical, mechanical, electronics, computer, each and everything from ISC exams. Everything I am taking. And again I am telling you, please today afternoon attend the aptitude class. Aptitude is not only important for gate classes, it is also important for all your competitive exams. All your competitive exams, this is very very important. So please don't miss it. Have patience. गेट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आप लड्डू नहीं है जो फटाक से खा जाएंगे. इसको पेशेंस होना पड़ता है, हार्डवर्क होना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है. आप पेशेंस रख के डिटेल में करते जाओ, डेफिनेटली विल फॉलो इट. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा इज एन ईजन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड के इज अ स्केलर, देन लैम्डा रेज़ टू m इज एन ईजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a रेज़ टू m. आपको बता चुका हूं. तो यहां पर क्या बोल रहा, ए के इजन वैल्यूज अगर से 2 4 2 है तो ए स्क्वायर के इजन वैल्यू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर बनेगी. 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर बनेगी. ए क्यूब के है तो 2 क्यूब 4 क्यूब और 2 क्यूब बनेगी. इसका मतलब अगर से मैट्रिक्स का भी स्क्वायर क्यूब रेज़ टू 4 रेज़ टू n हो गया तो इजन वैल्यूज के भी वैल्यूज क्या बनेंगे? स्क्वायर क्यूब रेज़ टू n बनते जाएंगे. इसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज भी करें. सो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन. K lambda is an eigen value of the matrix KA. इसके सब एग्जांपल दूंगा हम आपको. सपोज एक मैट्रिक्स A है, उसको आप K से मल्टीप्लाई करें, उसका ईजन वैल्यू लैम्डा है तो लैम्डा को भी आप K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, लैम्डा प्लस K इज एन ईजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A प्लस KI. तो ये A मैट्रिक्स है, उसका ईजन वैल्यू लैम्डा है, तो A प्लस KI है तो ईजन वैल्यू लैम्डा प्लस K हो जाएगा. सेम प्रॉपर्टी है माइनस के लिए, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर है. तो ये सब प्रॉपर्टी आप परफेक्ट. This is the second one. कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको. देखिए 1 3 2 आर इजन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज A is equal to 1 8 9 0 3 0. 1 3 2 आर इजन वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, दैट इज 1 8 9. देन अगर से आपको A raised to 4 के इजन वैल्यूज होने हैं तो जो इजन वैल्यूज आए उसको भी 4 कर दो. तो क्या हो जाएगा? 1 raised to 4 3 raised to 4 2 raised to 4. ये प्रॉपर्टी हो गया आपका. अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? आपको ये के इजन वैल्यूज 1 3 2 है, आपको 3a के इजन वैल्यू होना है. 3a के इजन वैल्यूज होना है
तो इजन वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको a प्लस 4i के इजन वैल्यूज होना है, a प्लस 4i के इजन वैल्यूज होना है, तो आप 4 फिर गिवन इजन वैल्यूज में ऐड करो। a माइनस 7i के होना है, उसमें से माइनस करो। सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इजन वैल्यूज। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ। अब आपको प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। मैं आपको डिटेल में विदाउट टेलिंग यू ऑल द प्रॉपर्टीज इन डिटेल, आई स्टार्टेड द प्रॉब्लम्स and I have taken whenever such problems came into picture, at that time I solved. But now from onwards, remember, I am telling you all the properties in detail. Half of the problems I solved. After this I will solve rest of the problems. Now you slide this, I will put in the group. Once you are perfect in these properties, no, so it is going to help you. Okay, now next property, again third property. If lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix, मैं आपको फिर बताता हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू 0 आता, डिटरमिनेंट। जिसका वैल्यू 0 नहीं आता, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ लैम्डा इज एन eigenvalue of a non-singular matrix A, then A इनवर्स का इजन वैल्यू क्या बनेगा? 1 by लैम्डा। A इनवर्स का क्या बनेगा? 1 by लैम्डा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में कर चुका हूं। अगर से किसी मैट्रिक्स का इजन वैल्यू 2 है, तो उसका A इनवर्स का इजन वैल्यू क्या बनेगा? 1 by 2 बनेगा। उसका क्या बनेगा? 1 by 2 बनेगा। डिटरमिनेंट A by लैम्डा इज एन इजन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट निकालो, उसको इजन वैल्यू ऑफ A से डिवाइड करो, तो वो किसका इजन वैल्यू बनेगा? एडजॉइंट ऑफ A का। एडजॉइंट और इनवर्स क्या है मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो ये भी प्रॉपर्टी अब अच्छी तरह याद करो। A का इजन वैल्यू आपको दिया, वो लैम्डा है, आपको एडजॉइंट ऑफ A का इजन वैल्यू होना है, तो उस A का डिटरमिनेंट निकालो, डिवाइड बाय इजन वैल्यू से डिवाइड करो, यू विल गेट इजन वैल्यू ऑफ इजन वैल्यू ऑफ। ये नया प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट करो। बहुत बार आपको प्रॉपर्टी पूछ लेता, प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन रहता। अगर से आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली कर सकते, इसको इजीली सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एग्जांपल है 2 माइनस 3 इजन 7 इजन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स के, तो इसके इनवर्स के इजन वैल्यूज क्या बनेंगे? ये एडजॉइंट के हैं, इनवर्स के तो क्या बनेंगे? 1 by 2, 1 by -3, 1 by 7। और अगर से आपको इसके एडजॉइंट के इजन वैल्यू होने हैं, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट -42 है, -42 by 2, -42 by -3, -42 by 7 are the इजन वैल्यूज ऑफ adjoint of A, are the इजन वैल्यूज ऑफ adjoint of A। क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी आपको इजी समझ में आता है, दूसरे में कुछ प्रॉब्लम है तो सोचो, नहीं है तो मुझे पूछो। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इजन वैल्यू। The eigenvalues of A and A raised to T are the same. E raised to T मतलब इसका ट्रांसपोज। एक कोई मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज करें तो A के जो इजन वैल्यूज रहेंगे सेम उसके ट्रांसपोज के रहेंगे, सेम उसके ट्रांसपोज के रहेंगे। तो याद रखो 2 3 -4 0 8 2 0 0 -9 ये एक मैट्रिक्स है। इसके इजन वैल्यूज अगर से इसके इजन वैल्यूज अगर से 2 8 -9 है, तो इसका ट्रांसपोज करो आप। ट्रांसपोज में तो रोज को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ। दैट इज 2 0 0 3 8 0 -4 2 -9। देन whatever the eigen values of A were there, no, same thing are going to be for transpose of A also। मतलब इसका मतलब फिर आपको बताता हूं मैं आपको, A और ट्रांसपोज ऑफ A के इजन वैल्यूज हमेशा सेम रहते, वो चेंज होने वाले नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हो सकता है मैं इसके प्रॉब्लम नहीं करे हो, कभी कभी प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ सकता है, आपको परफेक्ट होना चाहिए। तो एक बार और बताता हूं, द मैट्रिसेस A and A raised to transpose have same eigen value, Answer clear? Okay. Next one, fifth property of eigen value. If lambda is an eigen value of an orthogonal matrix, then 1 by lambda is also another eigen value of the same matrix, Now, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन मैं दे चुका हूं, अब मैं फिर बताते नहीं बैठता, आप पढ़ाई करो। इफ यू
didn't understand, then again you ask me, I will explain. See, don't hesitate to ask me anything. If I didn't tell you in this class, in the next class I will explain in detail. I will explain in detail. So I will tell you 1 minus 1 are the eigenvalues of an orthogonal matrix. एक orthogonal matrix है और उसके ईजन वैल्यूज है 1 1 माइनस 1. ये क्या बोलता है मालूम है? अगर से ये एक ईजन वैल्यू लैम्डा है, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो उसका एक और ईजन वैल्यू 1 बाय लैम्डा बनेगा. तो 1 1 रहने से आपको समझ में नहीं आ रहा. सपोज करो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ईजन वैल्यू 2 है, तो उसका एक और ईजन वैल्यू क्या बनेगा? 1 बाय 2 बनेगा. उसका एक और ईजन वैल्यू क्या बनेगा? 1 बाय 2 बनेगा. 1 बाय 2 बनेगा. जैसे कि यहाँ पर है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और इसके ईजन वैल्यूज cos थीटा प्लस sin थीटा है, तो उसका दूसरा ईजन वैल्यू क्या बनेगा? 1 अपॉन cos थीटा प्लस I sin थीटा. उसको रैशनलाइज करने पे आएगा cos थीटा माइनस I sin थीटा, cos थीटा माइनस I sin थीटा. तो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू. पर और मैं बताता हूँ आपको, सपोज इफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज देयर and its eigenvalue is lambda, then one more eigenvalue, उसी का एक और eigenvalue क्या रहेगा? 1 by lambda रहेगा. उसका एक और eigenvalue क्या रहेगा? 1 by lambda रहेगा. ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है आप पढ़ लीजिए, मैं बता चुका हूं आपको. If you did not understand, once again I will explain the things. Whatever the things are there, you tell me. Okay. Next one. Here is that. If a plus root b is an eigenvalue of a real matrix A, then a minus root b is also another eigenvalue. मैं आपको ये भी बता चुका हूं, अगर से आपका एक eigenvalue a plus root b है और वो रियल मैट्रिक्स है, उसका एक और eigenvalue क्या बनेगा? a minus root b बनेगा. a minus root b बनेगा. इन द बिगिनिंग मैं आपको एक ही दिन सभी प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सुनते थे उसको भूल जाते थे. कुछ प्रॉब्लम्स हम करे इस टाइप के, इसलिए आपको रिवाइज हो जाएगा. नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ वन ऑफ दी, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी करें हम 2 प्लस और माइनस 3i समथिंग लेके. हाँ, सो वन ऑफ द रूट इज इफ इट इज a प्लस रूट b और is the eigenvalue of a real matrix, then one more eigenvalue is going to be a minus root b. One more eigenvalue is going to be a minus root b. a minus root b. देखिए अब इसमें इजन वैल्यूज क्या क्या है? -1, 3 प्लस रूट 5 है. अगर से आपको 2 ही दिया तो तीसरा आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि एक अगर से 3 प्लस रूट 5 है तो उसका एक और इजन वैल्यू आपका 3 माइनस रूट 5 बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए. ये है इसका one more important property of eigen values. One more important property of eigen values. Now, one more property here. If a plus ib is an eigenvalue of a real matrix A, then a minus ib is also another eigenvalue. Same, it is similar to this one. वहां पर रूट लिया था और रियल नंबर लिया था, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर लिया. तो ये प्रॉपर्टी 6th and 7th property are one and are the same. One and are the same. Means if a plus ib is an eigenvalue of a real matrix A, if a plus ib is an eigenvalue of a real matrix A, then a minus ib is also another eigenvalue of similar. पिछले प्रॉपर्टी को जो था बिल्कुल उसके similar. I hope you all are following it and each and every property is clear to you. देखिए यहाँ पर एक इजन वैल्यू 0 है, दूसरा रूट 10 आई है, तो तीसरा अपने आप माइनस रूट 10 आई बनेगा, माइनस रूट 10 आई बनेगा. Clear the things? Now next property. देखिए each and every properties today I am telling you. If you have any doubts, please you ask us. If it okay. Now rejoin if it stops. Once again I will remind you, if it stops you rejoin again. Next property, the eigenvalues of a real symmetric. अब symmetric क्या है, हर्मिटियन क्या है, ये सभी आपको बता चुका हूँ. नहीं है तो मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में. आप बोलते जाइए डाउट है हमको. The eigenvalues of a real symmetric matrix are always real, and the eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or imaginary. बहुत many times it has been asked,
क्वेश्चन नहीं पूछा हो, ये प्रॉपर्टी पूछा। तो याद रखिए ईजन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। मैट्रिक्स हर्मिटियन है, रियल सिमेट्रिक है। हर्मिटियन क्या है मैं फिलहाल आपको बता के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बाद में बताता हूं मैं आपको। सो रिमेंबर हर्मिटियन मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ईजन वैल्यूज always are real ones, whereas when it is q symmetric or q Hermitian, then its roots eigen values are imaginary. This has been asked many times. सिमेट्रिक रहे तो 4 ऑप्शन देता आपको, उसका ईजन वैल्यू हमेशा रियल रहेगा, याद रखो। अगर से स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके ईजन वैल्यूज हमेशा वो कैसे रहेंगे, या तो 0 रहेगा या इमेजिनरी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लीज। इसके प्रॉब्लम नहीं पूछा, but it has been asked many times. Got it? Now the next property. If A equal to 0, -2, 1, 2, 0, -3, -1, 3, 0 is a real skew symmetric matrix. The matrix is skew symmetric matrix. So it is skew symmetric. Whenever the matrix is skew symmetric, as I told you, one of the eigen values is imaginary. One of the eigen values is 0 or imaginary. Here 0 is also there, imaginary is also there. So one of the eigen values is 0 and the other values are purely imaginary. So remember this one. Whenever the matrix is skew symmetric, so eigen values are going to be 0 or imaginary. 0 or imaginary. Now, next property. I hope each and every properties you are following in detail. Suppose if you are finding any difficulty, कोई डेफिनेशन आपको मालूम नहीं हो रहा, जैसा हर्मिटियन मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सब नए चीजें हैं आपको। ऐसे चीजें अगर से आपको नहीं मालूम है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क. I will tell in detail again. So next property again, this 9th property of eigen values. The eigen values of an orthogonal matrix are of unit modulus. अगर से कोई orthogonal matrix है तो उसके eigen values कैसे रहेंगे, 1 1 रहेंगे। उसके eigen values कैसे रहेंगे, 1 1 रहेंगे। The eigen values of an orthogonal or unitary matrix are of, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूँ, फिलहाल आप प्रॉपर्टी लिख लो। नहीं पता है तो मुझे पूछो, आप यू स्टडी दिस स्लाइड, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग आई विल टेल यू इन डिटेल। तो ये सब नए नहीं। सो दीज ऑल वेर प्रॉपर्टीज ऑफ ईजन वैल्यूज, these all were properties of eigen values. These all were properties of eigen values. Now we shall go to the properties of eigen vectors. We shall go for properties of eigen vectors. So in eigen vectors, one by one I will start. If देखिए अब तक जो हम पढ़े वो प्रॉपर्टीज ऑफ eigen values थे, फिर आपको बाद में कंफ्यूज होगा व्हाट इज eigen value, व्हाट इज eigen vector. सो ईजन वैल्यूज के लैम्डा रहता, ईजन वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स रहता, एक्स रहता। तो उसका वी शैल गो नाउ इन डिटेल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ ईजन वेक्टर्स। सी इफ लैम्डा इज एन ईजन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, if lambda is an eigen value of a matrix, if and only if there exists a non-zero vector x such that a into x is equal to lambda into x. This already I told you. यहाँ क्या है, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, x ईजन वेक्टर है, लैम्डा ईजन वैल्यू है, कैन राइट a into x is definition of eigen value and eigen vector also. Based on this one also, any problem कोण आहे काय सगळं सांगायचं तयारी बी ठेवायची, हेच नाही व्यवस्थित बोलायचं. आता तू दाखला next one.
If X is an eigenvector of a matrix A corresponding the eigenvalue lambda, then Kx for every non-zero scalar K is also an eigenvector खाणार आहे ना, पिणार आहे ना, corresponding to the same eigenvalue त्या ठिकाणी corresponding उलटं to the same बोलल्यासारखं झालं. eigenvalue. म्हटले म्हणून तुला सांगते, शेअर करायचे सगळे मित्र. बाप म्हणजे एक मित्र असतं. ती रॉबर्ट टी साठी आहे का? प्लीज सगळे म्यूट करा रिअल इस्टेट आणि म्यूट केला नाही तर म्यूट करा. पुण्यात बघायला श्रुती जाधव, आर्थिक करा मंडळ प्लीज. 1972 का 71 मध्ये श्रुती जाधव आर्थिक मंडळ होती ना, त्यावेळेस त्याने काय केलं करा. ना, जी मोठमोठ्या बिल्डिंग होत्या ना ती विकायला चालू झाली कमी किमतीत. म्हणजे कोणी कमी म्यूट केला किमतीत. तर म्यूट करा. Okay. So now we were properties of eigenvectors. So I told you Ax is equal to lambda x. Ax is equal to lambda x. Next is doubt again. Next is if x is an eigenvector of a matrix A corresponding to the eigenvalue. एक मैट्रिक्स है, उसका eigenvector x है, उसका eigenvalue lambda है. ये मान के चलो. देखिए अच्छी तरह समझो. If x is an eigenvector of a matrix A corresponding to the eigenvalue lambda, then Kx for every non-zero scalar K is also an eigenvector of A corresponding. मतलब आप eigenvector को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही बनेगा. ये कोई मतलब उतना डिफिकल्ट प्रॉपर्टी मतलब नहीं है. मैं आपको समझाता हूँ. एक मैट्रिक्स है, उसकी eigenvectors आए 1 2 3. तो अगर से आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 6 9 बनेगा, तो अगेन इट इज सेम ईजन वेक्टर. मतलब ईजन वेक्टर को आप के से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वो इसी ईजन वैल्यू के ईजन वेक्टर बनते जाएंगे. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉपर्टी. मतलब देखिए यहाँ पर 1 0 0 एन ईजन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन लैम्डा कितना है 1 है. के x1 मींस आई हैव मल्टीप्लाइड विद के इसको है, तो यहाँ पर फॉर एवरी नॉन जीरो स्केलर के ईच ईजन मैट्रिक्स ऑफ इनफाइनाइटली मेनी ईजन वेक्टर्स. मतलब आप इसको k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 0 0 ये भी ईजन वेक्टर बनता है उसी मैट्रिक्स का. 8 से मल्टीप्लाई करो 8 0 0 ये ईजन वेक्टर बनता है फिर इस मैट्रिक्स का. तो मतलब आप k से ईजन वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. नेक्स्ट वन, सपोज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग तो यू नीड नॉट वरी certain, because first of all thing is we are online, and second thing is I am not writing on the board. You may face little difficulties here. Once again you send me your queries, I will solve in detail, I will define in detail. Okay. Now third property, if x is an eigenvector of a matrix A, then x cannot correspond to more than one eigenvalue of A. You cannot get same eigenvector for two different values. मतलब क्या है, आपके eigenvectors lambda 1 lambda 2 lambda 3 है, तीनों अलग अलग है, तो ईजन वेक्टर भी आपके तीनों अलग अलग रहेंगे. ऐसा नहीं कि एक ईजन वैल्यू के लिए एक ईजन वेक्टर आया तो दूसरे ईजन वैल्यू के लिए भी वही ईजन वेक्टर बनेगा, ऐसा नहीं होगा. अगर से आपके पास तीन अलग अलग ईजन वैल्यू है तो तीन अलग अलग ईजन वेक्टर बनेंगे. क्लियर द थिंग्स. तो एक ईजन वैल्यू के दो ईजन वेक्टर नहीं हो सकते, दो ईजन वेक्टर नहीं हो सकते, दो ईजन वेक्टर नहीं हो सकते. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, so you can go through it. You can go through it. Next one, if lambda 1, lambda 2 up to lambda n are distinct eigenvalues of A, square matrix A of order n, then the corresponding eigenvectors are linearly independent. वैसे lambda 1, lambda 2 ईजन अलग अलग ईजन वैल्यूज है A के, तो इसके ईजन वेक्टर्स कैसे रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली डिपेंडेंट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट